Okay, now I'm going to ask you some spellings. Okay. First one is internal. What is the spelling of internal? Yes, Esha. INTERNAL. What? फिर से बोलो. INTERNAL. Very good. Internal. Well done. Next is graphics. Raise your hand, Shivam. What is the spelling of graphics? GRAPI. P I नहीं. GRAPIS. थोड़ी सी मिस्टेक है. Anyone else? Visha N. GRAPHICS. Well done. Graphics. Well done. Graphics. Okay. Next is external. Yes, Bhumi. EXTERNAL. Very good. External. Well done, Bhumi. Next is optical. Yes, Riyan. Optical. Speak again. Speak again. OETICAL. Well done. Optical. Anyone else? Yes, Freya Modi. What is the spelling of optical? OPCTICAL. No, no. फिर से बोलिए. OPTICAL. Well done. आपने C बोला था पहले. Yes. Arya Patel. What is the spelling of optical? OPTCIAL. लेकिन एक लेटर रह गया. Anyone else? Yes, Mahi. OPTICAL. Very good. Optical. Okay. Next one is mechanical. Next one is mechanical. आरव, then ये आर्य देसाई, विश्वा रावल, शेख कयाम, आप सबने नहीं की है स्पेलिंग लर्न. Why? मानव किरी. What is the spelling of mechanical? Ma'am, MEME. First of all, yes. Okay, अब बोलिए. MECHANICAL. Well done. Mechanical. Okay. Next one is intermediated. Manush. Yes, ma'am. What is the spelling of intermediated? IN T. You don't know? Anyone else?
किसी को भी नहीं आती है इंटरमीडिएट की स्पेलिंग? इंटरमीडिएटेड, इंटरमीडिएट किसी को भी नहीं आती है? नो शिवम, दिस इज रॉन्ग. करण, काव्या, मानुष. अच्छा, मानुष को तो नहीं आती है ना स्पेलिंग, अभी मैंने पूछा था उसको. सुष्मिता, जोहान. ओके, डोंट वरी, लेट्स लर्न दिस स्पेलिंग. अभी हम ये स्पेलिंग लर्न करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये स्पेलिंग इंटर का स्पेलिंग क्या होगा? INTER, इंटर. इंटरमीडिएट, ठीक है? INTER, इंटरमीडिएट. MEDIATE. डोंट डू दिस, आर्य देसाई. ओके, इंटरमीडिएट. नेक्स्ट वन इज, और कौन सी लिखवाई थी मैंने? माइक्रो प्रोसेसर, राइट? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? Who will tell me? Raise your hand. Keep fast. Arav Patel. What is the spelling of microprocessor? ERPROSSER. फिर से बोलो. MOICERPROSSER. MO नहीं आता है बेटा. करण, काव्या. जोहान को भी आती है. ओके, जोहान बोलिए. माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर. micro P PR जोहान बोलिए स्पेलिंग. MICROPROCESSOR. SSOR. लास्ट में क्या आएगा? SSOR, ठीक है? नेक्स्ट वन इज volatile. Jaldi, keep fast. Who will tell me first? What is the spelling of volatile? Janvi, Vishwa Raval. What is the spelling of volatile? Janvi, you don't know? Anyone else? जिसकी टर्न ना आई हो? सुष्मिता. What is the spelling of volatile? VOLATILE. Speak again, speak again. VOLATILE. Well done. Volatile, okay? Volatile is a memory. Next one is auxiliary. Keep fast. Vishwa Raval, do you know what is the spelling of auxiliary? देख देख के नहीं बोलना है. AUXA XI. XI
Liary. Anyone else? Sheikh Kayam, आपकी टर्न नहीं आई है. देव, Jainav Shah, what is the spelling of auxiliary? Krish Gandhi, what are you doing? All of you, you have to turn on your video. Krish Gandhi, what is the spelling of auxiliary? देख के नहीं बोलना है. Auxiliary, well done. Okay, done. And next is secondary. Vardhan. Vardhan, next. Yes, ma'am. What is the spelling of secondary? Secondary. आपके पास से बेटा बहुत ही वॉइस आ रही है. आप कैसे पढ़ रहे हो वहां पे बैठे बेटा? आर्य देसाई, what is the spelling of secondary? Yes, Janvi. Joy, Yes, ma'am. what is the spelling of secondary? SECONDRY. DARY. Okay, ma'am. Well done. Next is और कौन सी बाकी रही? Resolution. Resolution. What is the spelling of resolution? Yes, Bhumi. Johan. Shlok. RESOLUTION. LUTION. Well done. Resolution. Okay, so मैंने आपको सारी के सारी स्पेलिंग लर्न जो आपने की थी वो मैंने पूछ ली. ठीक है ना? फिर भी बहुत जनों ने नहीं की है, लेकिन आपको मैं आज फिर से यही होमवर्क दूंगी एंड यू हैव टू लर्न दिस स्पेलिंग्स. ओके, नाउ अब हम रीडिंग की प्रैक्टिस करते हैं. ओके, ओके हम फिर से आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पेज नंबर 1 से. चलो जानवी रीड कीजिए. Okay, ma'am. A computer is an electronic machine that consists of a number of interrelated components which work together to convert data into information in a step-by-step manner. It first accepts the data according to the given instruction. नहीं बेटा, it first accept the data and instruction from the user. From the user? This is known as input. The computer then processes the data according to the given instruction. This is known as processing. After processing, ma'am, it needs input device, a central Produce the desired output. Produce the desired output. This is known as output.
to accomplish This task, a computer needs input device, a central processing unit, CPU, and output device. In addition, it requires memory to store the input or input, output, and the temporary result produced. produced during the processing. वेल डन, ठीक है। अब लिसन ऑल ऑफ यू, अभी मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। और जैसे ही बुक आएगी तो मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा दूंगी, ओके। एंड आज मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर लूंगी, ओके ऑल ऑफ यू। ओके, आज मैं है ना आपको चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसमें से आप देख के रीडिंग कर सकते हो, ओके। चलो लेट्स सी। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स। सो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, which work together to convert the data into information in step by step manner. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ वर्क करके जो डेटा को है ना कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप वो डेटा को कन्वर्ट करते हैं इंफॉर्मेशन में। इट फर्स्ट एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो ये सारे कंपोनेंट्स है ना, वो सबसे पहले जितने भी जो यूजर होते हैं ना उनसे डेटा को लेते हैं, ठीक है। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को यूजर से लेते हैं, ठीक है। इट इज नॉन एज अ इनपुट। जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालते हैं, ठीक है, कुछ भी इन करते हैं, डेटा को या इंस्ट्रक्शन को डालते हैं, तो उन सबको क्या बोलते हैं? इनपुट। द कंप्यूटर then the computer then process the data according the given instruction। फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा? उस डेटा पे वो इंफॉर्मेशन पे उस पे प्रोसेस करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग द गिवन इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग की वो डेटा को प्रोसेस करेगा। दिस इज नॉन एज अ प्रोसेसिंग, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेसिंग। आफ्टर द प्रोसेसिंग प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। उसके बाद वो क्या करेगा? रिजल्ट को देगा। जैसे कि आई एम गोइंग टू टेल यू वन एग्जांपल। जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखा, ठीक है, विद द यूज ऑफ कीबोर्ड। जैसे कि आपने लिखा हेलो, आपने क्या लिखा? हेलो लिखा, कंप्यूटर के अंदर हेलो लिखा, तो ये हेलो क्या हुआ? डेटा हुआ, इंफॉर्मेशन हुई, ठीक है। आपने विद द यूज ऑफ कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड आपका, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर आपने हेलो लिखा, ठीक है। तो वो सारा मतलब ये क्या हुआ? डेटा हुआ। क्या हुआ? ये डेटा। तो ये डेटा जाएगा मॉनिटर के अंदर, सॉरी सीपीयू के अंदर। आपने विद द यूज ऑफ कीबोर्ड हेलो लिखा, ठीक है, वो सारा का सारा जाएगा सीपीयू के अंदर, ठीक है। दैट मीन्स कि वो प्रोसेसिंग हुआ। सबसे पहले इनपुट हुआ, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? इनपुट हुआ, इनपुट हुआ, उसके बाद सीपीयू के अंदर गया, तो दैट मीन्स कि वो प्रोसेस से हुआ, प्रोसेसिंग हुई उसकी, उस डेटा पे प्रोसेस हुआ। एंड फाइनली हमको जो रिजल्ट मिलता है मॉनिटर के अंदर, विच इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। ये है आपका मॉनिटर। इसके अंदर आपको डिस्प्ले होगा, ये आपने हेलो डाला, ठीक है, आपने कीबोर्ड में हेलो डाला, ठीक है, वो सीपीयू के अंदर गया, मॉनिटर को दिखाई देगा कि आपने हेलो लिखा है, ठीक है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देखो सबसे पहले आपने विद द यूज ऑफ कीबोर्ड आपने टाइप किया हेलो, ठीक है, तो वो क्या हुआ? इनपुट हुआ, ठीक है। उसके बाद वो हेलो सीपीयू के अंदर जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद जो आपको हेलो मॉनिटर के अंदर दिखाता है वो होगा आपका आउटपुट,
ठीक है, तो ये कंप्यूटर इस तरीके से वर्क करता है। अ कंप्यूटर नीड्स इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, अगर हमने जैसे कि हेलो डाला, ठीक है, तो कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस चाहिए, ठीक है, तो इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं, कौन से होते हैं, कीबोर्ड, माउस, है ना, वो सारे होते हैं इनपुट डिवाइसेस। इससे अलावा भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इन द सेंस सीपीयू, ठीक है। वेट, जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर विद द यूज ऑफ कीबोर्ड आपने लिखा हेलो, माय नेम इज, जो भी हो आपका नाम, ठीक है, तो वो किसके, आपने कैसे लिखा, विद द यूज ऑफ कीबोर्ड। आपने विद द यूज ऑफ कीबोर्ड आपने लिखा हेलो माय नेम इज, जो भी हो आपका नाम, फिर वो सीपीयू के अंदर जाएगा, और फाइनली प्रोसेसिंग करेगा और वो डिजायर आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉनिटर में अंदर लिखा आएगा, ये है आपका मॉनिटर, एंड इसके अंदर आपको लिखा आएगा कि आपने क्या लिखा है, हेलो माय नेम इज, जो भी होगा आपको लिखाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा कीबोर्ड, ठीक है, विद द यूज ऑफ कीबोर्ड हमने लिखा माय नेम इज, तो दैट मींस कि वो हमने इन किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड यूज किया, कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस, देन सीपीयू, सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड यहाँ पे जो फाइनली आउटपुट मिलेगा तो वो किसके द्वारा मिलेगा, विद द यूज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर यही मतलब कि ये यही प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। And in addition, it requires the memory to store input, output, and temporary result produced during the processing. ठीक है, तो ये सब हो गया, ठीक है, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, एंड डिजायर वो आउट रिजल्ट देगा, ठीक है, प्रोसेसिंग भी हुई। तो उसके अलावा हमको क्या चाहिए, उसके अलावा हमको स्टोरेज डिवाइस चाहिए, ठीक है, जो भी हमने जैसे कि हमने लिखा है लो माय नेम इज डैश, ठीक है, तो वो भी सेव होना चाहिए ना, तो उसके लिए हमको स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, जैसे कि सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, तो उसके लिए हमको वो चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। आर्या पटेल, प्लीज रीड इनपुट डिवाइस। Okay, ma'am. Input device. The devices which अलाउ allow the user to feed input what is data and information into the computer. इट इज इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, Induction into the are known as input devices. These devices ट्रांसफर transform data and instruction into the from understood by the computer. Let us डिस्कस द यूज discuss the use and working to some of the commonly used input devices. Okay. Input devices. The devices which allow the user to feed the input, that is the data and instruction into the computer, are known as the input devices. तो input devices किससे कहते हैं? The devices which allow, जो भी device allow करते हैं यूजर को कंप्यूटर के अंदर कुछ भी डालने के लिए, कुछ भी अलाउ करते हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइसेस। दिस डिवाइसेस ट्रांसफॉर्म द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। सो इसके मतलब कि ये डिवाइसेस कैसे होते हैं? वो डेटा को ट्रांसफर करते हैं, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर समझ पाए, ठीक है।
कंप्यूटर है ना हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर ना ही इंग्लिश लैंग्वेज समझता है ना ही हिंदी या कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, ठीक है। So let us discuss the working, use and working of some commonly used input devices. ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड। विद द यूज ऑफ कीबोर्ड हम कंप्यूटर के अंदर टाइप कर सकते हैं ना, विद द यूज ऑफ, है ना, यस और नो। हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर मतलब कि जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, यस और नो, यस। सो सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस है विच इज अ कीबोर्ड। So first one is keyboard. Please read first paragraph, Bhumi. A keyboard is one of the most popular and widely used input device, which is used for typing text. It has many buttons on it called Called keys. You can use these keys for entering number, letters, and special chapters into the computer. Special, it is character. ठीक है, क्या लिखा है, characters. Okay, first one is keyboard. A keyboard, आपको पता ही है कीबोर्ड के बारे में, है ना। A keyboard is one of the most popular and widely used input device. So keyboard is also input device which is used for typing text. With the use of keyboard, you can type any text. It has a many buttons on it called the keys. So इसके ऊपर बहुत सारे buttons होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, keys बोलेंगे. Then you can use these keys for entering numbers, letters and special characters into the computer. So with the use of these keys, you can enter numbers. इस की से आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर इन द सेंस कि कोई भी आप @ हैशटैग स्टार, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता है ना वो, एंड सिंबल, तो वो सारे ब्रैकेट, वो सारे क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, ठीक है, उन सबको भी टाइप कर सकते हो। Then अच्छा यहाँ से कौन रीड करेगा, प्रिया मोदी बेटा रीड करो सेकंड पैराग्राफ ऑफ कीबोर्ड। When the user pressed a key on the keyboard, a single corresponding to that key is generated. This way is computer identifies the key, press and display the corresponding character on the screen. The computer keyboard which we use are commonly known as a what happened, Freya? ये क्या लिखा है? Commonly known as a QWERTY keyboard. QWERTY keyboard. The name of the QWERTY comes from the first 6 letters in the top row of the alphabet keys of the keyboard. The figure given below shows the typical keyboard and the types of keys it has. ओके हम यहाँ तक रखते हैं, ये नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, बिकॉज टाइम बहुत कम बाकी है। आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस, ओके ऑल ऑफ यू।